Hello my dear students, how are you all? I hope you will find and I welcome you to science class for class 8, and today we are going to learn the remaining thing that we left in the previous class of chapter 6, that is combustion and flame. So without wasting time, let's get started. Okay, so today we are going to learn the flame. Okay, yes. So whenever we light a matchstick, whenever we light a matchstick, it produces a yellow flame, and whenever we light a candle, it also produces a yellow flame. And whenever we light a LPG stove, so it produces a light blue flame. Whenever we burn any wood, it produces a yellow flame, black with lots of shoot. Lots of shoot, shoot. Yes. So what is basically flame? A flame is a region of burning gases. It is a region of burning gases, the region in which the gases or the gas is burning. Yes. So in matchstick, it has some chemicals. When we rub it, when we rub with red phosphorus, on the side of matchbox, its ignition temperature increases and it catch fire. Yes, and it burn. Yes, when we light a candle, the wax near this wick, it melts and it converted into vapor, and then it burns. Yes, and then in LPG cylinder, the gas, it has already gas, which burn. Yes, and here in wood, since it has very less amount of gas, the wood is a solid substance. When we heat it, when we burn it, so before burning it, its temperature rises, that means we heat it. So when the wood got hot, it produces gas, and then that help to burn it. Yes, so you can understand by this. Yes, so it is a gas which help to burn the any substance. Yes, next thing, study of candle flame. Yes, so whenever you observe carefully a candle, so you will find different layers, different parts. It is not the whole thing is not the same. You will find that at the base you have a blue colored zone, and then you have a dark zone, and then the upper side you have a yellow zone, and then after the yellow zone you have an invisible zone. Yes, so you have basically 4 layer in a flame. The first is blue zone, then the second is dark zone, then third is luminous zone, and then the non-luminous zone. Yes, so we'll see how they are formed, why they are formed. So what happened, at the base of the candle, the oxygen from the surrounding, it come and the wax vapor burn completely. When it burn completely, it produces a blue zone. Yes, but as we move up here in this region, the concentration of wax vapor is too much high. The concentration of wax vapor is too much, and they are not able to burn it completely. Yes, so that is why here wax vapor are not do not burn completely. Yes, or we can say they do not burn actually. They just decompose. Yes, and that is why they form a gray zone, dark gray zone. It is here, this is the dark gray zone. And as we move up, so this vapor they get sufficient amount of oxygen here, and it burn partially. This yellow zone, the luminous zone, it burn partially. Means some of it produces CO2, it produces water plus other harmful gases like carbon monoxide. Yes, so this dark zone is the coolest part, then this luminous zone, the yellow zone, is the hotter than this dark zone. Yes, then there is a non-luminous zone which is above this, which is invisible actually. So that is very hot. And
this is the region where complete combustion take place. Okay, yes, this is the region where complete combustion take place. Okay, so here the vapor burn completely and produces CO2 plus water vapor. Okay, yes, so this was the scene. Now this was the scene. Okay, and this region, the non-luminous, is the hottest part. Okay, so दिस इज द लिस्ट, सबसे कम हॉट वाला रीजन द डार्क जोन, सबसे कम. ओके, देन इससे ज़्यादा लुमिनस जोन, एंड देन सबसे ज़्यादा नॉन लुमिनस जोन. ओके, यस, सो सबसे ज़्यादा नॉन लुमिनस जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है. ओके, और इसमें कंप्लीट कंबुशन होता है, इसमें पार्शियल कंबुशन होता है, और इसमें कंबुशन होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ जो डीकम्पोज होता है. ओके, यस, ये बस डीकम्पोज होता है, इसमें कंबुशन होता ही नहीं है. ओके, यस, देन वी मूव फ्यूल एंड देयर टाइप्स. ओके, सो फ्यूल, व्हाट इज अ फ्यूल? सो फ्यूल इज अ सब्सटेंस, इट इज any substance, it is any substance which is easily available. First of all, it should be available, then it burn in air at a moderate rate. Okay, it should not burn very rapidly, it should not be burned very rapidly. Okay, or it should not burn very slowly, it should burn at a moderate rate. We should produce a large amount of heat. Okay, yes, it should produce a large amount of heat. Okay, so it should produce a large amount of heat energy. Okay, sorry, yes, yeah. Okay, and without leaving behind any undesirable ashes. Okay, means it should not produce any undesirable thing. Okay, it should not produce any harmful gas. Okay, otherwise it will not be called as a fuel. Okay, so फ्यूल वो चीज़ है कि कोई सब्सटेंस हो जो कि ईजिली अवेलेबल हो, जो कि बर्न हो एयर के साथ में, एयर के साथ मिक्स हो के बर्न हो के एक मॉडरेट रेट से बर्न हो, और खूब ढेर सारी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, और उसमें से कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना निकले. सो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूल. ओके, अगर कोई चीज़ है जैसे कि सल्फ़र, एक सल्फ़र होता है SeO2 सल्फ़र. ओके, तो जो सल्फ़र होता है ये भी बर्न होता है और ये भी हीट प्रोड्यूस करता है. ओके, बट इट प्रोड्यूसेस ऑल्सो द हार्मफुल गैसेस. सो वी कैन नॉट कॉल दिस सल्फ़र एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग undesirable things, undesirable ashes. Okay, undesirable things, it is producing undesirable thing. Okay, so that sulfur will be not called as a fuel. Okay, so most of the absolutely all we cannot say 100% pure. Okay, ऐसा नहीं है कि थोड़ा भी हार्मफुल ना हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक लिमिट से हार्मफुल है तो उसको हम लोग फ्यूल नहीं बोलेंगे. जैसे CO2 है, सो इट इज़, अगर एक लिमिटेड अमाउंट में हो CO2 तो इट इज़ नॉट हार्मफुल, बट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ हार्मफुल. ओके, यस, देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. सो व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, इट इज़ फ्यूल. इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. व्हाट यू मीन बाय दिस? अगर 1 kg का एक वुड है, ठीक है, और 1 kg का अगर हम लोग कोई लिक्विड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल. ओके, अगर दोनों ऑब्सोल्युटली ये तो लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन एक तरह से मान के चलते हैं कि 1 kg इसको लेते हैं और 1 kg इसको भी लेते हैं. ठीक है, दोनों को बर्न करेंगे तो इससे जो एनर्जी निकलेगी वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और इससे जो एनर्जी निकलेगी वो काफ़ी कम एनर्जी निकलेगी. बाकी तो धुआं, एशेस और कार्बन प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, सो एक ही kg में इससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है और इससे कम एनर्जी मिल रही है, तो ये वाले को बोलेंगे कि जो लिक्विड, जो पेट्रोल, जो केरोसिन है, ये जो भी ऑयल यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है. ओके, यस, सो यू कैन अंडरस्टैंड that amount of heat energy produced on complete burning 1 kg of fuel, okay, in pure oxygen is called calorific value of that fuel. Okay, yes, so let's move. Next is classification of fuel. Okay, yes, so classification of fuel. So on the basis of physical characteristic, we can categorize
the fuel in three categories, that is solid fuel, then liquid fuel, then gaseous fuel. Okay, so those fuel which occur in the solid state, those are called solid fuel. Those which occur in liquid state, those are called liquid fuels, and those which occur in gaseous state, those are called gaseous fuel. Okay, what are their example? Like solid fuels, wood, agriculture residue, okay, then charcoal, then coke, coal, wax. Okay, all these things are solid fuel. What are the example of liquid fuel? So like liquefied petroleum gas, hydrogen gas, okay, then petrol, kerosene, diesel, alcohol. Okay, then what are the gaseous fuel? So water gas, then CNG, okay, then coal gas, then gobar gas, or we can say methane, okay, methane, methane, okay, CH4, okay, yes, then hydrogen gas, okay, yes. Okay, one more thing, we have some different fuels, okay, different type of fuels. So we can see here their calorific value, which fuel is best, which fuel produces. अगर सबका एक kg अगर हम लोग लेते हैं, सबका अमाउंट 1 kg काउ डंग, 1 kg वुड, 1 kg कोल, 1 kg पेट्रोल, 1 kg केरोसिन, 1 kg हाइड्रोजन. सो हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसमें 1 kg में 150,000 kg पर जूल किलो जूल का जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है. वहीं पे अगर काउ डंग है 1 kg का, तो वो 6,000 तक ही वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, सो यहाँ पे ये दिया है कि कौन सा वी कैन सी हियर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल. ओके, यस. द नेक्स्ट इज which is best fuel and why. Okay, yes. So best fuel, obviously the gaseous fuel are the best fuel, and why they are best fuel, let's see the reason. Okay, so gaseous fuel is the best fuel, and it has the different reason for this. Let's see. So gaseous fuel can be supplied to consumer with ease through pipe or gas cylinder. Okay, yes. Then gaseous fuel do not leave behind any ash or solid residue on combustion. Okay, so अगर हम लोग take the example of LPG उसको प्रोड्यूस किए, उसको सिलेंडर में फिल किए और उसको ईजिली हम लोग कस्टमर को सप्लाई कर दिए. ओके, व्हेन वी बर्न इट वी डू नॉट गेट एनी हार्मफुल गैसेस. ऐसा नहीं है. अगर हम लोग कोई वुड को अगर बर्न करते हैं, जैसे कि नॉर्मली चूल्हे में विलेज में या बहुत जगह यूज करते हैं, तो अगर उसको हम लोग बर्न करते हैं, बहुत सारे रेसिड्यू जो क्या बोलते हैं, जो राख बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है ना. लेकिन अगर एलपीजी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता है. ठीक है, रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता, या जो होता भी है बहुत कम अमाउंट में होता है, वो गैसेस फॉर्म में होता है. ओके, यस. द नेक्स्ट इज the gaseous fuel produce least amount of harmful gases. Yes, absolutely, we just discussed. Then compared to solid or liquid, gaseous fuel can be easily ignited. Okay, yes. अभी you see एक वुड का लॉग है, एक वुड का टुकड़ा है, इसको अगर एक मैस्टिक से अगर बर्न करेंगे तो ये बर्न नहीं होगा. लेकिन वहीं पे अगर एक कोई गैस है, उसको अगर मैस्टिक से बर्न करते हैं तो वो फटाक से बर्न होगा. क्यों? क्योंकि काफ़ी इनफ्लेमेबल होता है. उसका मतलब कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है काफ़ी लो होता है, और वो लो टेम्परेचर पे फटाक से फायर कैच कर लेता है. ओके, सो ड्यू टू इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर it catches fire easily. It is easily ignited, especially giant. Okay, so for its burning there is a special designed burner, okay, with tiny spark. Then gaseous fuel have high calorific value. Okay, obviously हम लोगों ने देखा था जो भी गैसेस फ्यूल है, वो चाहे हाइड्रोजन हो या बायोगैस मीथेन हो या एलपीजी हो या सीएनजी हो या मीथेन हो, ये जो भी गैसेस वाली फ्यूल है, इनमें इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब कि जो इनको बर्न करने पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी मिलती है. ओके, यस, कंपेयर टू अदर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स. ओके, यस. देन द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ गैसेस कैन बी इजीली कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व. ओके, अब एक तरफ जो ट्रेडिशनल चूल्हा है वो है, और उसमें हम लोग लकड़ी यूज कर रहे हैं. अभी इसको काफ़ी ज़्यादा ये रैपिडली बर्न कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई, और फटाक से इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे गैस है, ठीक है, तो उसका अगर वॉल्व हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो गैस कम जाएगी, फिर गैस कम जाएगी तो कम बर्न होगा और
जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिक्विड और सॉलिड के साथ इजीली नहीं कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ वन मोर एडवांटेज, ओके, यस। The next is the problem caused by combustion of fuels. Okay, yes. Okay, sorry. Okay, so we saw that whenever any fuel burn, it produces CO2 plus water vapor. Okay, but 100% combustion of any fuel is not possible. Okay, लेट सपोज कि जो गैसेस फ्यूल होता है उसमें 98-99% तक कंप्लीट कम्बुशन होता है। जो सॉलिड होता है उसमें समथिंग 85 या उसके अराउंड या 90 के अराउंड होता है। जो सॉलिड होता है उसमें 50 के अराउंड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जितना कंप्लीट कम्बुशन होगा उतना कम हार्मफुल गैसेस और उतना ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी मिलेगी, ठीक है, यस। सो विद 100% कंप्लीट कम्बुशन इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर जो भी फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं या अदर चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, कैसे वो हार्मफुल हैं वो भी देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो द कार्बन डाइऑक्साइड वेन एवर दे प्रोड्यूस एनी फ्यूल बर्न, जो भी फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ओके। सो सिंस दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स, यू माइट हैव स्टडीड दैट प्लांट यूज दिस CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, लेकिन एक हद तक होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, ठीक है। तो क्या होता है जब बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये जो सन से रेज आती हैं इसको ये ट्रैप कर लेती हैं, मतलब इसको रोक लेती है, इसको अपने अंदर सोख लेती हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेते हैं सन रेज को, ठीक है। जब ये सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और वो बढ़ता ही रहता है और बना ही रहता है वैसे ही, तो वो क्रिएट करता है ग्लोबल वार्मिंग। फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो भी पोलर रीजन जो हमारी अर्थ है, जो इधर ये साइड में और ये साइड में जो पोल साइड में जो पोलर रीजन है, वहाँ पे जो आइस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। तो जो भी यहाँ के एनिमल है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यू कैन सी हियर, ओके। यहाँ से ऐसे मेल्ट होके इतना बचा है, ठीक है। सो जो यहाँ के एनिमल है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर जब ये मेल्ट होगा, इतने बड़े बड़े आइस के जो ये माउंटेन्स है, जब ये मेल्ट होंगे तो जो सी लेवल है, जो समुद्र का जो पानी है वो इंक्रीज होगा, उसका लेवल इंक्रीज होगा। और 7 मीटर तक ऐसा एस्टिमेशन है कि 7 मीटर, यू कैन इमेजिन कि 7 मीटर कितना होता है, एक घर की जो दीवार है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो इतना ऊंचाई तक जो समुद्र का जो पानी है वो बढ़ जाएगा अगर ये मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से, तो ठीक है। जब ऐसा अगर मेल्ट होगा तो क्या होगा, जो भी समुद्र के आसपास जो भी बीचेस है उनके आसपास जो भी रेसिडेंट है, जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनके जो है वो जो एरिया है सबमर्ज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इनके लिए भी, और जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कोस्टल रीजन में, जैसे कि हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, जो भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक हार्मफुल गैस है जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। हमारे ब्रीदिंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके, यस। देन ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या होता है कि ये दोनों जो गैसेस हैं, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये जब सन के साथ रिएक्ट करती है, ये नाइट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। और ये भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जब वाटर के साथ मिक्स होता है, जब ऐसे सपोज ये एटमॉस्फेयर में ऐसे प्रेजेंट है, जब रेन होगा, जो ऊपर से जब रेनफॉल होगा तो इनके साथ मिक्स हो जाएगी, फिर ये नाइट्रिक एसिड बना जाएगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो दोनों ही मतलब कि दोनों ही एसिड बनाते हैं, और दोनों ही जब भी ज़मीन पे आते हैं, जब ग्राउंड पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, तो जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है, जो भी प्लांट्स है, या अगर ह्यूमन बॉडी पे गिर गया तो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ओके, बिल्डिंग मटेरियल को, प्लांट्स को,
ठीक है। तो वो जो ग्राउंड है वो डैमेज हो जाता है, फिर वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और यू कैन से ये था कैसे ये जो मोनूमेंट है, जो स्टैचू है, वो ख़राब हो गई है। ओके, यस। देन जो कार्बन पार्टिकल है, आपने देखा हो जब भी हम लोग घर के आसपास या जब भी हमारे जो क्रॉप रेसिड्यू होता है अगर उसको जलाते हैं तो कितना सारा स्मोक निकलता है उसमें से। तो वो जो स्मोक होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, वो जाके हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जब भी ठंडी के मौसम में, जो विंटर सीजन में, ये जो कार्बन पार्टिकल्स है ये ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाते हैं तो ये नीचे ही सस्पेंड रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, विजिबिलिटी कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि, और ये जो भी कार्बन पार्टिकल्स है, ये अगर इसको हम लोग ब्रीथ के साथ में अगर हमारे यहाँ अंदर जाता है तो ये भी हमें काफ़ी हेल्थ इशू क्रिएट करता है। ओके, यस। सो दैट्स ऑल। Here we completed this chapter. If you have any doubt, please ask. And before that, you have some question. Try to answer them. Like, why a candle flame produces 4 different regions? Okay, why? Because at the beginning, it get much amount of oxygen, so it produces blue flame. As we move at the center, it do not get sufficient amount of oxygen, and that is why it do not burn. Okay, it just decompose. Okay, that is why it appear as a dark. Okay, and when its outer layer, it gets some amount of oxygen and it burn partially. Okay, and that is why it produces a yellow flame. And then the above region, non-luminous zone, it get enough amount of oxygen and it burn completely, and it is non-visible, and it is the hottest part. Okay, yes. Why gaseous fuel is considered as a best fuel? Yes, we have discussed. So right there, what are the harmful gases produced during combustion? So NO2, nitrogen dioxide, carbon monoxide, SO2, sulfur dioxide. Okay, yes. So all these things are harmful gases. CO2 also, yes. Then carbon particle, then ashes, all these things. Okay, yes. So thank you so much. Keep studying. Bye bye.